Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 9.14. The chapter is cost of capital and you can look at it. We are associated with WACC, weighted average cost of capital, and we have already discussed some of the factors and it is very important to discuss them again. So we will discuss them in a very short term manner. First of all, you should understand what is capital, the amount which is invested by owner of the business into the business, that is called capital. And if that amount is not arranged within the sources of owner, any amount which is invested by the proprietor, partner, or shareholder into the business is called capital. But if owners are not arranging their amount within out of their resources, they have taken loan from somewhere and that amount of loan is invested into the business, it is called debt financing. And if all of the amount is arranged by themselves with their own resources, it is called equity financing. And with equity financing, what we have, if owner is the common shareholders, investment can be made by the proprietor when there is only one sole owner, that is called proprietor. Investment can be made by partners if there are more than one owners, and investment can be made by shareholders if there are hundreds and thousands of investors present in the market. If you are taking amount from the shareholders and that shareholder from which you are taking amount is unknown, in a sense unknown, he is not directly involved in the business, he is just the investor, so you will be related with common shareholders, yeah, common stock over here you can write. And then if you are getting amount as an investment from shareholders but with special terms and conditions, this would be called preferred stocks. Any condition which is individually been decided with the shareholder, it would be considered as preferred stock. It may be possible you are just deciding it. When the organization is earning profit, that profit will be shared with the shareholders, means shared with the preferred shareholders. And in case of loss, that loss will not be shared by preferred shareholders, only profit will be distributed. It is just an example. There may be several other terms and conditions which can be decided with the preferred shareholders. And last is retained earning, when an organization is earning some profit but that profit is not distributed among shareholders, it is still in hand of organization, that profit is called retained earning. So these are sources of finance for any organization. If amount is arranged through loan and that amount of loan is invested in the business is called debt financing. Equity financing, amount which is invested by owners is arranged from their own resources, that is called equity financing. अब वैक क्या चीज़ है? इफ़ देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस, जैसे ये सारे अलग अलग लिखे हुए हैं, तो अगर मल्टीपल वेज यूज़ किए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो उनकी एक एवरेज कॉस्ट निकालनी होती है. और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में वी हैड फिक्स दैट वी विल कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विद द फिक्स कॉलम्स, जहाँ पर हमने सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि व्हाट इज़ योर कैपिटल स्ट्रक्चर इन द क्वेश्चन. और कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या आपने डेट लिया, यस या नो. तो इफ़ यू हैव टेकन debt for the financing, this is first structure. Then you will see if common shareholders are present, and then common stock लिख देते हैं, इस जगह ज़्यादा घेर है. So common stock is present and then preferred stock you are related with, so you are going to write preferred stock and then retained earnings. हमेशा ऐसे ही आपने कैपिटल का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, चाहे क्वेश्चन में कुछ कम है या ज़्यादा है. सो हेयर वी हैव क्रिएटेड कैपिटल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट you will see if amounts are present of these different type of stocks. अगर अमाउंट प्रेजेंट है तो आप उसको यहाँ पर लिखिएगा.
उसके आगे इन अमाउंट्स के आप वेट्स कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टाइम्स, वो भी हम डिस्कस कर भी चुके हैं, बट अगेन वी विल डिस्कस इट। एंड नेक्स्ट, अगर वेट्स आपके पास कैलकुलेट होके आ गए हुए हैं तो देन यू विल सर्च कॉस्ट, और वो भी टाइम्स की सूरत में आप लिखेंगे। कॉस्ट बुक में गिवन होती है, इसलिए ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन फुल एंड फाइनल step is to multiply weights with cost. Last two columns will be multiplied with each other. तो ये आपका एक फिक्स, लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, वी हैड फिक्स्ड इट, द प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चाहे क्वेश्चन किसी तरह का भी हो, आपने ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है। और आप देखिए कि हमने अभी ये भी क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, लेकिन हमने इसका प्रोसीजर पहले ही लिख दिया, और ये हर क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही कॉमन आएगा। वैक, इट इज़ कॉल्ड, व्हाट इट इज़, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप कैलकुलेट करने लगे हैं, और उसके लिए ये कॉलम्स हमेशा आप बनाते रहेंगे, और इन कॉलम्स के ज़रिए जब फाइनलाइज करेंगे तो आपके पास इनके आंसर्स आ जाएंगे। ओके, अब ज़रा क्वेश्चन की शक्ल देखते हैं, वहाँ क्या है। तो सोर्सेज और स्ट्रक्चर इज़ गिवन एट द वेरी फर्स्ट कॉलम। यहाँ पर डेट है, प्रेफर्ड और कॉमन है, और रिटेन्ड अर्निंग इस क्वेश्चन में भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये रिटेन्ड अर्निंग के आगे आप ज़ीरो भी लगा सकते हैं, लिखा भी रहने दें, प्रैक्टिस के लिए आप बनता रहेगा। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू राइट अमाउंट्स। अच्छा, ये आप सोचिएगा कि वाई वी आर नॉट जस्ट स्टडिंग और रीडिंग व्हाट इज़ रिटन ऑन द अबव लाइन्स। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, हमें पढ़ना ज़रूर चाहिए, लेकिन नॉर्मली ये सिर्फ कंपनी का इंट्रोडक्शन वगैरह होता है, वेबस्टार्ट कंपनी है, सो वी आर कमिंग टू द पॉइंट। यहाँ पर डेट की अमाउंट 4 मिलियन है, और यू विल गो टू द डेट एंड विल राइट 4 मिलियन ओवर हेयर। दिस इज 4 मिलियन अमाउंट फॉर डेट फाइनेंसिंग। एंड नाउ सी प्रेफर्ड स्टॉक, हाउ मच अमाउंट फॉर प्रेफर्ड स्टॉक इज $40,000. So here you will come over here and you will write 40,000 of preferred stock. अब आप सोचेंगे sequence of book is different to the sequence we are writing over here. कोई बात नहीं, या आपको ऐसे ही याद रहेगा, बस सिर्फ थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट ये करनी पड़ेगी, वहाँ पढ़ें किससे रिलेटेड मैटर है वो यहाँ पुट करते जाइए। नेक्स्ट इज कॉमन स्टॉक इक्विटी। हियर वी हैव एंड 1,60,000 or 10,60,000. We are going to write in front of common stock 10,000, 10,60,000. So here we have amounts, और हर दफ़ा आपको ये amounts ऐसे ही क्वेश्चन के अंदर से मिलेंगी और आपने पुट कर देनी है। अब दूसरी बात ये है कि रिटेन्ड अर्निंग इज़ नॉट प्रेजेंट इन द क्वेश्चन, तो यू कैन मार्क ज़ीरो ओवर हेयर। फाइनेंसिंग पूरे होने के बाद चाहे क्वेश्चन में कुछ भी कह रहा है, what you are going to do, you will calculate the sum of all these amounts present in stock structure, capital structure. सम करने के लिए मैं एक्सेल से इफ़ आई विल गोइंग टू टेक हेल्प, तो इट वुड बी जस्ट वन क्लिक एंड सम वुड बी कैलकुलेटेड। मगर मैं आपके साथ चलता रहता हूँ, तो कैलकुलेटर पे व्हाट यू विल डू, यू विल राइट 4 मिलियन प्लस 10,60,000 प्लस 40,000, एंड हियर यू हैव गॉट द total of amount. It means 5 million is total amount of investment, out of which 4 million is just the debt financing. ये भी मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है, there may be possibility the whole business is running on debt financing and no single penny is used from their own resources. It is possible that as an individual you have very practical idea, very marketable idea, very profitable idea, and you have presented that idea to the investor, and investor is ready to invest but they are still reluctant. Maybe you are new, maybe your experience is not enough, or due to any reason they are not ready to invest in your company. So what they are saying, we are ready to provide you amount but not as a partner, we are providing you amount as a debt, अमाउंट एज अ डेट, दे आर प्रोवाइडिंग दिस अमाउंट एज डेट। तो डिफरेंस क्या हुआ फिर डेट और इक्विटी के अंदर? इन इक्विटी you will have to as an investor you will share your profit, you will share losses as well. But in case of bankruptcy of the company, like company is closed or it has been disappeared, so what will happen? In equity financing you have no claim for your resources. It means your amount has been demolished, your amount has been ended, and there is complete
लॉस आफ्टर इन्वेस्टमेंट, बट इन केस ऑफ डेट फाइनेंसिंग कंपनी मर गई, ख़त्म हो गई और एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, कंपनी इज डिसअपीयर्ड, इवन देन owners of the company are liable to pay amounts of debt to the creditors. तो इसलिए जो डाउट्स होंगे तो वहाँ पे डेट फाइनेंसिंग होगी। और इसका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, देयर विल बी अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट विच वुड बी गिवन टू द क्रेडिटर। इक्विटी में ये भी हो सकता है कि विद इन वन सिंगल नाइट you may have 100% profit within one single night or single day you can get, जिसको बोलते हैं रातों रात अमीर हो गए, तो within a single night you can get 100% profit, your amount can be doubled, but in case of debt financing there will be a fixed rate of interest and that rate would also be not very attractive. That's why debt financing is not acceptable for so many investors. लेकिन अगर organization is very weak and their idea is not acceptable as the idea is new, then it is possible nobody is ready to invest as partner, they will be ready to invest as debt. बहरहाल अब हमारे पास जो ये अमाउंट आई, तो अब आपको नज़र आ रहा है कि डेट इज़ इन हायर प्रपोर्शन। आप 5 मिलियन के अंदर 4 मिलियन यू हैव टेकन डेट, और उसमें सिर्फ 1 मिलियन जो है वो कॉमन शेयर होल्डर से है, और 40,000 ये सबसे कम इसलिए है कि प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स जो हैं वो नखरे वाले होते हैं, एंड यू हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड सेवरल टर्म्स विच आर आउट ऑफ द वे, you have accepted those terms and conditions. So normally no organization will be willing to have investment from the preferred shareholders. अब आपको इसके वेट्स निकालने हैं, क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा ही नहीं है और हम वेट्स निकाल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर वैक है तो दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द वेट्स। वेट्स निकालने के लिए देर आर टू मेथड्स, वन टू कैलकुलेट द परसेंटेज एंड सेकेंडली टू कैलकुलेट द अमाउंट इन टर्म्स ऑफ टाइम्स। हमने पहले लिख दिया, हम टाइम्स के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। फॉर दिस व्हाट यू विल डू, इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ कैपिटल, इट्स डेट, इंडिविजुअल अमाउंट 4 लाख एंड डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट which was 51 lakh, and here you have got the amount of weight in terms of time. अब अगर आपने इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो यू मे राइट इट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। जब भी आपने परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो ये 78% है, इट मीन्स 51 lakh इज टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ विच 78% अमाउंट वी हैव टेकन एज अ लोन। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग ऑन हैवी लोन्स। 78% ऑफ इन्वेस्टमेंट हैड कम थ्रू लोन। अच्छा, अब अगर जब आपने टाइम्स लिखा एंड यू आर विलिंग टू गेट इट्स टोटल, टोटल भी आपको करना है। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि इसका टोटल वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1। यहाँ पर हमेशा इसका टोटल 1 के बराबर आया करेगा। और दूसरी बात ये है कि जब आप परसेंटेज की सूरत में लिखेंगे, जैसे ही 78%, उसका टोटल वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 100। बस ये थोड़ा सा फ़र्क समझना, इट्स जस्ट डिपेंडिंग अपॉन योर ऑप्शन। इफ़ यू वांट टू राइट डाउन अमाउंट ऑफ वेट्स इन टर्म्स ऑफ टाइम्स, तो आप सिंपल जो आंसर आया लिख दें और उसका टोटल 1 आया करेगा। बट इफ़ यू वांट टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, जैसे 78% है तो उसका टोटल 100 आया करेगा। लेट्स टेक वेट ऑफ सेकेंड कैपिटल विच वॉज फ्रॉम कॉमन स्टॉक। क्या करना है, इंडिविजुअल अमाउंट 10,60,000 डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट विच वॉज 51 lakh। हेयर यू हैव गॉट, इट इज शोइंग दैट 20% ऑफ योर टोटल कैपिटल इज has come from common shareholders. And let's see what is percentage of preferred stock. Individual amount 40,000 divided by total amount 15 lakh. So here you have come only 0.07%. 0.07%. It means very small amount you are getting from preferred shareholders. अब ये जो एक है, this has been written by me. चेक करना है आपने हमेशा। टोटल ऑफ वेट्स वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1 जहाँ पे टाइम्स लिखा हुआ है, और टोटल ऑफ वेट्स वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 100 जहाँ पे आपने परसेंटेज यूज़ की है। अब चूँकि वी हैव यूज्ड इट इन टर्म्स ऑफ टाइम्स, इसका टोटल हमेशा 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं है, इसका मतलब या तो कहीं ज़ीरो ज़्यादा कम लग गया है या परसेंटेज गलत लग गई है, कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशंस में देयर इज़ अ मिस्टेक। आप सम कैसे करेंगे, फर्स्ट परसेंटेज 0.78 प्लस 0.20 प्लस 0.007 एंड
अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इफ आई विल क्लिक इज इक्वल टू आफ्टर दिस, इट शुड बी इक्वल टू 1, अदरवाइज दीज वेट्स विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग। अब ये देखिए पूरा पूरा आपके पास 1 आया, इसका मतलब है कि ऑल कैलकुलेशंस आर करेक्ट, यहाँ पे अमाउंट्स भी ठीक कलेक्ट की गई हैं, वेट्स आर इक्वल। इन दो स्टेप्स को करने के बाद यू विल हैव टू स्टॉप। अब क्वेश्चन आपको पढ़ना है, चूंकि हमने इतना ही देखा था, आगे देखें मार्केट वैल्यू भी दी हुई है। हमने तो बुक वैल्यू को पिक किया और अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को हमने लिख दिया। ओके, वन अनदर थिंग वी हैव सीन दैट टोटल हैज़ बीन ऑलरेडी कैलकुलेटेड 51 लाख, जो हमने कैलकुलेट किया था खुद से। बहरहाल चलें, कोई बात नहीं। ओके, मार्केट वैल्यू भी गिवन है, इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्विस्ट है। पहले आप इसकी रीडिंग करें, कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू। और हमने किससे क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, हमने बुक वैल्यूज़ ही लिखी हैं, क्योंकि सिर्फ ये कॉलम लिखा हुआ था, तो थैंकफुली ए पार्ट हमारा एज इट इज़ चलेगा। बुक वैल्यूज़ वर गिवन एंड वी हैव रिटर्न बुक वैल्यूज़ इन आर क्वेश्चन 51 लाख टोटल। तो इसका मतलब है वी आर वेरी ओपन टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द बुक वैल्यूज़। यहाँ पर हमने अमाउंट्स लिख दी हुई हैं। नेक्स्ट स्टेप, आपने इसकी कॉस्ट यहाँ पर लिखनी है, दैट कॉस्ट वुड बी गिवन इन योर क्वेश्चन। यहाँ पर दोनों की कॉस्ट सेम है, चाहे मार्केट वैल्यू है चाहे वो बुक वैल्यू है। हेयर इज़ योर कॉस्ट। फर्स्ट कॉस्ट इज एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म डेट। हेयर यू कैन सी फर्स्ट आइटम इज लॉन्ग टर्म डेट एंड कॉस्ट इज 6%। अब यहाँ पर फिर अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि इफ़ यू विल राइट 6%, तो you can write, but here you have used times, then you will have to use same category over cost column as well. So you will have to write times, not percentage. So when you have percentage and you want to convert in times, तो आप simple you will be dividing it by 100. तो you will get the times. एक और मेरी बात सुनिए ज़रा, if you have percentage and you want to convert in to times, जब आपने टाइम्स को परसेंट बनाया था तो you have multiplied। अब जब आपने परसेंटेज को वापस टाइम पे लेकर आना है तो यू विल जस्ट गोइंग टू डिवाइड बाय 100। सो हेयर परसेंटेज वाज गिवन इन द क्वेश्चन, एज यू कैन सी परसेंटेज इज मेंशन्ड 6%। सो वी वर नीडेड टू कन्वर्ट इनटू टाइम्स। व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट डिवाइडेड इट बाय 100 एंड वी आर गेटिंग आवर आंसर इन टर्म्स ऑफ टाइम्स। अब सेकेंड जो परसेंटेज विच इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 13% at first stage, but for what? It is preferred stock 13%. Now see where preferred stock is on third, and write down 13%, which means 13 divided by 100, with which you will get the answer of cost in terms of times. 6 and 13 we have written. 13 was associated with preferred stock, and last capital is common stock. Percentage is cost of percentage of cost is 17%. So you will write over here in front of common stock, मैंने चेक कर लिया, 17% means 17 divided by 100, so that you can write it in terms of times. आपकी कॉस्ट भी पूरी हो गई, और चूंकि रिटेन अर्निंग इज नॉट प्रेजेंट इन द क्वेश्चन, सो यू मे राइट 0 ओवर हेयर, देर इज नो प्रोपोर्शन, यू मे राइट 0 ओवर हेयर। अब आपको इसका टोटल कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, कॉस्ट का टोटल इट्स नॉट नेसेसरी टू बी कैलकुलेटेड, सो यू कैन लीव इट। अब आपको लास्ट कॉलम में क्या करना है, वेट को मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट के साथ। हेयर वी आर हैविंग वेट्स और हेयर वी आर हैविंग कॉस्ट। यहाँ एक छोटा सा फड्डा है, इन एक्सेल इट इज़ वेरी इजी फॉर मी, आई विल जस्ट पिक द अमाउंट एंड विल मल्टीप्लाई। आप कैलकुलेट करते हुए आई एम रिक्वेस्टिंग यू, जस्ट डू नॉट बी इरिटेटिंग विद योर सेल्फ। आपने इन पूरी अमाउंट्स को लिखना है। इफ़ यू विल राइट फुल अमाउंट्स यू विल गेट एक्यूरेट आंसर, अदरवाइज देर विल बी अ प्रॉब्लम। अगर इस पूरी अमाउंट्स को पिक करते हुए बुक का आंसर भी मैच नहीं होता, डोंट वरी अबाउट दैट। मतलब बुक का आंसर 100% मैच नहीं हो रहा, ये तो होगा कि डेसिमल से एक दो अमाउंट्स मैच करेंगी, लेकिन डेसिमल से अगली अमाउंट्स अगर नहीं मैच करती कोई बात नहीं, आपका आंसर करेक्ट है, बुक का आंसर गलत है, क्योंकि वो उसको एक्यूमुलेट करके आंसर निकाल रहे होंगे। सो वी आर नॉट राउंडिंग अप एनीथिंग, वी हैव रिटन एग्जैक्ट अमाउंट्स व्हाट शुड बी अपीयर्ड ऑन द कैलकुलेटर, नो अमाउंट हैज़ बीन राउंडेड आउट। सो वी आर यूजिंग 8 to 10 decimals after decimal amount. First step, to calculate weight multiply cost for debt financing. Here we are having weight which was 0.78,
multiply it with cost which was 0.06, we have got the value of weighted average for debt financing only. And then you are going to calculate the value for common stock. For common stock, weight is 0.20 and its cost is 0.17. Here you have got the value for common stock, and now you are needed to calculate value for preferred stock. Weight of preferred stock is 0.007 and cost is 0.13. Here you have got the value for the preferred stock as well. In this way, all values are being calculated. Now you are needed just to calculate its total. यहाँ पर आप इसका टोटल कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए आई विल टेक हेल्प फ्रॉम एक्सेल, नॉट in Excel way. I will just be calculating some of these amounts like I'm using the calculator in simple calculator. The first amount was 0.047. Just one thing which is assisting me, I have not to repeat the amount. On calculators you will have to repeat the amount. Plus next amount is 0.035, next amount is 0.13, and here you have got your answer, which is okay guys. What I was looking at 0.13, how is it possible? This was 0.13. So we were supposed to multiply weight and cost, and just cost was written over here. So now we will correct it. Here we have written cost and we didn't multiply it with weight. Here you have weights. So total you have now 0.0834. all right, 0.0834, it is your answer. You may end your question over here, but you are needed to write in terms of percentage as well. So what you will do, you will write in percentage. अब मुझे ज़रा बताइए, it is answer in terms of times, क्योंकि weight was in time, cost was in time. Obviously when you will multiply weight with cost, answer would be in terms of times. अब आपने इसको परसेंटेज बनाना है. परसेंटेज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद आंसर देना चाहिए. वैसे आपको वीडियो स्टॉप करके आंसर करें कि डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है. व्हेन यू वांट टू मेक इट परसेंट, यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100. हियर यू विल राइट योर आंसर. तो एग्जैक्ट आंसर इज योर 8.34%. और ये आपने क्या निकाला है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इट इज़, यहाँ पर आप इसका आंसर लिख सकते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको आपने नाम दिया था वैक का. आंसर आप बुक से आप चेक कर लीजिएगा और आंसर आपके पास 8.34 है. लेकिन कीप इट इन माइंड, इट इज़ वन पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन. आपने सारा काम किस लिए किया है, क्योंकि ए पार्ट में वो बोल रहा था कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यूज़. तो यू हैव यूज्ड बुक वैल्यूज़. ओके, अब बी पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का. नाउ सी व्हाट बी पार्ट इज सेइंग. यू आर नीडेड टू कैलकुलेट अगेन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. वही निकालना है यूजिंग मार्केट वैल्यू. अब देखिए, हो सकता है कि आपको ये बात अच्छी ना लगे. फॉर मी इट इज़ वेरी सिंपल. व्हाट आई विल डू, आई विल पिक दीज अमाउंट्स एंड विल राइट अगेन, बिकॉज एवरीथिंग इज़ सिमिलर. आपने भी ऐसे ही समझना, लेकिन इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इन द पेपर तो आपको दोबारा ये सारा कुछ लिखना पड़ेगा. सिर्फ ही सेइंग टू चेंज द अमाउंट्स. तो अब मुझे अमाउंट्स ये वाली नहीं चाहिए. इससे मत घबराइए, आगे जो ये DIV आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है, अमाउंट आपने रेस कर दी हुई है. अब पहले जो अमाउंट्स लिखी हुई थी, दैट वाज अमाउंट अकॉर्डिंग टू बुक वैल्यू, और नाउ यू आर राइटिंग द अमाउंट्स अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू. थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा. तो हेयर यू आर नीडेड टू राइट अमाउंट्स अकॉर्डिंग टू मार्केट. वो भी आपने कैलकुलेट नहीं करनी, द अमाउंट्स आर गिवन इन द बुक. यहाँ पर आप देखें, एक कॉलम देयर वाज एंड इट वाज हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल कैपिटल, different types of capital, and here we are having market value of these capitals. तरतीब सारी वही है. आपको सिर्फ ये करना है कि यहाँ पर बुक वैल्यू लिखी हुई थी, अब यहाँ पर आपने मार्केट वैल्यू लिखनी है. सो हाउ मच डेट इज़ अकॉर्डिंग टू मार्केट,
first element was debt and it was 38 lakh 40,000. Okay, go and write 38 lakh 40,000. Here we have the amount of debt. And now see what is next, that is preferred stock. Amount of preferred stock is 60,000. So here we have preferred stock 60,000. I was about to write on wrong row. 60,000 was the amount of preferred stock, second number preferred stock, third is common stock, and amount of common stock is 3 million. We can see over here 3 million, and you are going to write 3 million over here. 3 million. all right. अच्छा, अब आपको मैं चाहता हूँ कि मैं ये रिपीट करूँ सारी बात, तो इसलिए हम इसको देख लीजिए. 384 टेट्रा ज़ीरो, 38,40,000 is your debt and 30 lakh is your common stock and 60,000. ओके, टोटल शुड बी 69 लाख. ये अपने आप हमारे हो गया टोटल, तो वो टोटल आ गया हुआ. इट मीन सारी अमाउंट्स ठीक हैं. ज़ीरो चूँकि इतने ज़्यादा हैं तो यू विल हैव टू टेक अ मिनट टू सी वेदर ज़ीरो आर एक्यूरेट. देन यू आर नीडेड टू कैलकुलेट वेट्स, और उसके लिए मैंने क्यों रेज़ किया, ताकि ये रिपीट कर सकें. इंडिविजुअल टोटल divided by grand total. Here you have the weight, but in terms of times. Now you are needed to calculate next value of weight, individual total divided by grand total weight. Now next value of the weight, individual total of preferred stock divided by grand total, and here we are having the weights. Retained earning is not present in the question, write down 0. Next step is to calculate the cost, or wo cost is given in the book 6th 17 13, and you have written 6 17 13. or since second element of capital was preferred stock over here, our side preferred stock is written on the third line, that is why it is 6 17 13. Since there was nothing to do with the cost as it was given in the question, so same costs which were used in your part A, they are being used over here as well. अब नेक्स्ट आपको लास्ट कॉलम में क्या करना है, मल्टीप्लाई वेट विद कॉस्ट. दिस इज वेट ऑफ योर डेट and you are needed to multiply with its cost, which was 6%. Here you have your first value for debt, and now you are needed to calculate for common stock. Common stock weight was 0.43, multiply by its cost 17%. Here you have got the second value. And now for the third, its preferred stock weight was 0.00, multiply by its cost, which is 13%. कुछ गलत हो गया. Okay, comma was not needed to write here, multiply. So here you have all of your values to be calculated. 0 you may write in front of retained earning, as in question it is not present, and now you are just needed to calculate its sum. We have 0.03, then add 0.07, and then add 0.00. So here you have got 0.1084. अच्छा जी, it is exact answer because we are not missing any decimal. आपको यहाँ पूरे डेसिमल लिखे हुए हैं, तो अगर ये बुक से कोई माइनर सी चीज़ मैच नहीं हो रही तो यू कैन इग्नोर इट. अब इसको आपने परसेंटेज बनानी है, तो दिस इज़ 10.84 मल्टीप्लाई बाय 100, देयर यू विल गेट योर परसेंटेज. अब इसको ये 10.84 है, 11% भी लिखा जा सकता है. तो आप चूँकि बहुत ज़्यादा 5 से ऊपर अमाउंट है, तो आप इसको और करके 11% मेंशन कर सकते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी. नहीं करें, कोई बात नहीं. आपका ये आंसर इट वुड बी कंसिडर्ड करेक्ट बिकॉज you have taken all the decimals. So this way we have calculated weighted average cost of capital for the B part, and this you have calculated weighted average cost of capital for the A part. Difference was only one column. Here you have written amounts of capitals according to book value, and here you have written amounts of capital according to market value. Remaining process was same. Both weighted average cost of capital we have done. All right, that was your question.
and hopefully you people have understood. I am not claiming that you have enjoyed, but believe me, this is my work and I love my work and I have enjoyed. Okay, so question number 9.14 is completed. We will meet soon again for the solution of any other question. Up till then, please take care of yourself, and I am asking you to please pray for me as well. Question is completed. Thank you very much for your time. Meet you soon. Allah Hafiz.